Okay, students, now we are going to start with miscellaneous exercise of chapter 1 relations and functions class 12th और ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਜੋ 1.1 ਔਰ 1.2 ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ 1.1 ਔਰ 1.2 ਦੇ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1.1 ਔਰ 1.2 ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ डायरेक्टली ऑन माई WhatsApp नंबर और गिव मी अ मेल और WhatsApp राही तुसी मैनू दस सकते हो कि आ प्रॉब्लम है और एज यूजल अगर कोई स्टूडेंट्स सिंसेयरली पढ़ रहे हैं एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स टॉप पोजीशन तो आई विल डेफिनेटली हेल्प विद द जूम क्लास ओके सो इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन क्वेश्चन नंबर 1 f defined from set of real numbers domain is set of real numbers and range is x is taking those real numbers which lies between -1 to 1 सारे real number नहीं जो -1 और 1 ਦੇ ਵਿੱਚ लाई ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ range set ਬਣਨਗੇ ਕੋਡੋਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾय x over 1 plus x modulus x belongs to R and he's asking you to prove it 1 1 and on 2 this is the question तो as usual ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ you are taking two different points x and y ਦੋ different point ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so x over 1 plus x modulus y पुट करांगे तो y over 1 plus y modulus ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ when x is positive y is negative ठीक है केस सेकंड की बनता है when x is negative y is positive देखते हैं फिर की बनता है इथों when x is positive we have x over 1 plus modulus the definition की है when x is greater than 0 the modulus value is 1 over 1 plus x y नेगेटिव है तो इत्थे आ जाएगा 1 modulus की definition है अगर नेगेटिव है तो माइनस y आ जाएगा राइट हुण इहदी आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं so after making the cross multiplication you are taking this on this side 2xy x minus y now according to our condition case number 1 because x is greater than 0 y is less than 0 this means that this side is positive and this side x positive है y negative है पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन करांगे तो टोटल की आ जाएगा लेस देन 0 और x माइनस वाई की आ जाएगा ग्रेटर देन 0 बिकॉज x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो दोनों साइड्स आपस में फिर बराबर नहीं है इत्थे की लैके चले सीगे कि फंक्शन वैल्यूज बराबर हैं बट देयर डोमेन वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर ठीक है तो हुण आपां आ चेक कर लेने कि एक पॉजिटिव एक लैस दे लिए आप आ है और हुण अगर x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है then again we are starting from this x is less than 0 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 minus x ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ y over 1 plus y now again cross multiplication x plus xy y minus xy we are taking on this side okay so 2xy this is y minus x again the same argument 2xy देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो लेस देन 0 and this is y minus x is greater than 0 again these both sides are not equal so for these two cases
when they have the opposite sign, this function is not 1 1. ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਥਰਡ ਵਿੱਚ when both are positive, and case fourth ਵਿੱਚ when both are negative, right? So when both are positive, taking from that x over 1 plus x, y over 1 plus y, ठीक है। मॉडुलस की डेफिनेशन आप यूज कर रहे हैं इत्थे भी, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, मेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus xy, y plus xy, cancelling xy factor, x is equal to y. Case fourth, when both are negative, you have 1 minus x. This is our equation number 1. Okay, तब equation 1 तो 1 minus 1 over y over 1 minus y. Again cross multiplication, x minus xy, y minus xy, cancelling the xy term, you have x equal to y. So in these two both cases the function is 1 1. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ function 1 1 ਬਣੇਗਾ when both x and y are either positive or both x and y are either negative, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ on to ਲੈਣੇ ਆ। on to ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, on to ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ y, ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, y is a function of x, okay, ਤਾਂ x over 1 plus x modulus, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ when both x and y are positive, y is equal to x over 1 plus x, पॉजिटिव ले रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y plus xy is equal to x, taking x on this side, x is equal to y over y minus 1. So की लिखांगे, so for y belongs to R, there exists x belongs to R such that x is equal to y minus 1 and y is not equal to 1, क्योंकि अगर आप 0 के बराबर 1 के बराबर हो गया तो x will not be defined. This means that the function from R to x belongs to R minus 1 less than x, x is less than 1 is on to, यानी कि अपने को ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ, ਠੀਕ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਵਿਦ ਆਲ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਦੱਬ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ 1.1 ਔਰ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ 1.2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ 1.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1.2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, fx is equal to x cube, ठीक, and function is from R to R। लेकिन जो 1.2 ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੀਗਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਟੂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, यानी कि ये 1 1 है, नॉट ऑन टू नहीं, बट नॉट ऑन टू 1 1 है। एन इज ए सबसैट ऑफ रियल नंबर्स। जिहड़ी चीज़ सबसैट दे विच ट्रू हो रही है वो फिर उहदे मेन सैट दे विच भी ट्रू होएगी। यानी कि कहने का मतलब है
आ फंक्शन केवल 1 1 होएगा और ऑन टू नहीं होएगा, ठीक है। दैट मीन्स इंजेक्टिव, वही सेम कम है सारा, वही सारी सेम वर्डिंग्स हैं, चेंज की है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन एंड को डोमेन नेचुरल नंबर देता है, इतने डोमेन और को डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स देता, जितने तुम एन लिखा होते बस आर लिखना है, ठीक। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड। इन थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, कंसिडर पी एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी कि पावर सेट। पी एक्स मीनस पावर सेट, पावर सेट की होता है सबसेट्स का फिर सेट बनाने आप, ये तो आप पहले +1 सीख ही चुके हैं ना। डिफाइन द रिलेशन आर इन पावर सेट एज फॉलोज, फोर सबसेट्स ए बी इन पावर सेट ए आर बी। इतने वो आपू रिलेशन ਨੂੰ डिफाइन करके दस रहा है, ए आर बी इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। जो रिलेशन इस क्वेश्चन विच वो आपको दस रहा है कि इस तरह ए और बी इस तरह रिलेटेड ने कि पहला सैट दूसरे सैट का सबसैट है। तो हुण ये आपको दस रहा है कि जो वो रिलेशन डिफाइन करके दस रहा है वो आप चैक करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है। स्टेटमेंट मैं थानू तुसी बुक में देखो ध्यान ना, क्योंकि बड़ी स्टेटमेंट है इस करके मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चैक करने के लिए आप रिफ्लैक्सिव रिलेशन चैक करना है, दूसरा आप चैक करना है सिमेट्रिक, ठीक है। तीसरा आप चेक करना है, थर्ड वी हैव टू चेक ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर ये तीनों चीज़ां सैटिस्फाई होंदियां ने दैन दैट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लैक्सिव रिलेशन का मतलब है कि सेम सैट आप दो बार लेने, यानी कि इत्थे की बनेगा ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, दिस मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ ए, और ये ट्रू है, दैट इज every set and we know that every set is subset of itself, ठीक है। अपने आप का सबसेट तो होता ही हो, ऐसे करके रिलेशन जो है आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करने के लिए आपको आ चेक करना पड़ेगा कि इफ ए आर बी, this means that A is subset of B, then क्या B A का सबसेट होएगा? देखो एग्जांपल लेने हैं, suppose A having this element is a set, B having this element 1 2 5। ਹੁਣ तो साफ पता लग रहा है कि A ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, बट B ਦੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट A ਵਿੱਚ नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब अगर ए बी का सबसैट है तो बी ए का सबसैट उदों होंदा है जो दोनों सैट बराबर हो, ठीक है। बट जनरल का नहीं ना होया, तो बी ए का सबसैट नहीं है, ठीक है। इंप्लाइज आ रिलेशन फिर सेट नहीं है, दिस मीन्स दैट, है ना। तो ये सबसेट तो नहीं है, फिर ये रिलेशन भी नहीं है, राइट। दैट मीन्स दैट दिस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव आ जाइए, ट्रांजिटिव के विच इफ ए आर बी, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ सी, दिस इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर तो एवं होंदा है तो वो ट्रांजिटिव होएगा, चेक कर लेने। ए रिलेशन बी का मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, और बी आर सी का मतलब है बी सबसेट ऑफ सी। ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, मतलब सी जो है सब तो बड़ा सैट हो गया। हुण ए दे सारे एलीमेंट बी दे विच ने, बी दे सारे एलीमेंट्स सी दे विच ने, ਇਹਦਾ मतलब ए दे भी सी दे विच ने। तो दिस मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, और ਇਹਦੇ ਲਈ आ भी फिर ट्रू है कि ए इज रिलेटेड टू सी। दिस मीन्स दैट आर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव है। हुण रिफ्लैक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी रहेगा, बट सिमेट्रिक नहीं है। तीनों चीज़ों विच एक रिलेशन जो एक कंडीशन है वो
सैटिस्फाई नहीं हो रही, दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन जो उन्हें एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पेज देता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आ सी थोड़ा थर्ड क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन और वो बच्चों वास्ते ईजी है जिन्होंने +1 ਦੇ ਵਿੱਚ परमुटेशन कंबीनेशन ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट दिस टू इटसेल्फ। आ एक सेट दिता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट n नैचुरल नंबर्स, ਉਹਦਾ एक सेट बनाया हुआ है और वो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछ रहे हैं अपने को। देखो एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पूछ रहा होवे अपने ही सेट तो सेट ऑफ नैचुरल नंबर तो अपने सेट तक, तो दैट इज इक्वल टू तुसी ऐ लिखोगे नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम 1 2 3 अप टू n to itself is equal to number of permutations of first n natural numbers, first n natural numbers, यानी कि 1 2 3 अप टू n तो की होएगा n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल तुसी एवें लिख दो या फैक्टोरियल तुसी एवें भी लिख सकते हो, है ना। इन्हों आप की पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, आ मतलब तो इहदा हो गया ऑन टू फंक्शंस। कितने होंगे, जिन्ने उहदे विच नैचुरल नंबर्स होंगे, लगातार नैचुरल नंबर्स होने चाहिए ने। अगर मान लो 1 तो 10 तक नैचुरल नंबर्स ने तो फिर क्या आएगा 10 फैक्टोरियल। अगर 5 ने तो 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120। 4 ने तो 4, ठीक है। तो उहदे जिन्ने उहदे एलिमेंट्स ने रेगुलर एलिमेंट्स, रेगुलर नैचुरल नंबर्स, उन्ना ही फैक्टोरियल अपने को हो जाएगा। फैक्टोरियल क्योंकि आप नैचुरल नंबर तो करते रहे हैं ना +1 दे विच। तो आ वाला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहानू एक तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है और सिर्फ वो ऑन टू फंक्शन ही अगर नहीं पूछता, अगर वो 1 फंक्शंस भी पूछ लेंदा है देन आंसर विल बी सेम, ठीक है। 1 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ 1 functions of first n natural numbers is equal to again n factorial। तो 1 functions दे भी उन्ने नंबर होंगे जिन्ने की on to functions दे होंगे, n factorial जिन्ने ही 1 और on to functions बननगे, ठीक है। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th is you have given 2 sets, set A is having elements -1 0 1 2, set B is -4 -2 0 2 एलिमेंट्स और दोनों फंक्शन सी जो ने वो A to B उन्होंने दी डोमेन की है A और रेंज की है B सेट, यानी कि जो X आप लवांगे वो आप लवांगे A दे एलिमेंट्स और जो अपने को सॉल्व करके आंसर आएगा वो S को डोमेन विचों आएगा, राइट। वो एलिमेंट्स आने चाहिए। उन्होंने कह रहा है कि चेक करके दिखाओ आ दोनों फंक्शंस जो ने वो इक्वल हैं कि नहीं है। इक्वलिटी दे लिए की मतलब है कि दोनों की वैल्यूज सेम आनी चाहिए ने, हर एक डोमेन जो एलिमेंट्स है उन्होंने एलिमेंट्स के लिए फंक्शन वैल्यू सेम होनी चाहिए है। देखो कि मैं पहले आप एक डोमेन वैल्यू चकते हैं -1 ले लेने, ठीक है, और एस फंक्शन के पुट करते हैं -1 मीनस 1 और ये हो जाएगा +1 तो कितना आ गया 2 और एफ हम एफ तो भर लिया आप, जी तो भरते हैं -1 ही भर रहे हैं। इतने भरो 2 मॉडलस -1 -½ एंड -1, दिस इज -3/2 और मॉडलस है तो +3/2 -1, 3 -1 कितना आ गया 2 आ गया। आ दोनों अपन की दर्शा रहे हैं कि f-1 इज इक्वल टू g-1, राइट। ये चेक हो गया। हुण f0 कढ़ लो, f0 लवांगे तो 0 और g0 ले लो, इतने 0 भरते हैं। -1 का मॉडलस आएगा -½ का मॉडलस आएगा +½ 2 × ½ -1 कितना आ गया 2 1 -1 0। तो आ दोनों वैल्यू फिर 0 अपनी बराबर हो गया। तो f0 इज इक्वल टू g0
ਹੁਣ ਥਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, f1 ਕੱਢਦੇ ਆ, f1 इज 1 माइनस 1 0 और g1 इज ਇੱਥੇ ਭਰੋ 1 माइनस हाफ इज हाफ, दो नाल कटेगा तो कितना बचेगा 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0। तो ਇੱਥੇ आ भी प्रूफ हो गया, f1 इज इक्वल टू g1 राइट। ਹੁਣ आ जाओ f2 ਇਹਦੇ ਚ ਕੱਢੋ 4 माइनस 2 2 और g2 ਕੱਢਦੇ ਆ, दिस इज 2 और 4 माइनस दिस 3/2 ठीक है, और माइनस 1 दो नाल कैंसिल हो गया, 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, तो आ भी बराबर आ गया f2 इज इक्वल टू g2। तो हर एक वैल्यू दे लई, हर एक डोमेन वैल्यू दे लई fa इज इक्वल टू ga, दोनों की फंक्शनल वैल्यू बराबर आ रही ने, दैट मीनस दीज टू फंक्शंस आर इक्वल। आ चेक करना सीगा, बड़ा ईजी है ना इक्वल फंक्शंस दे, जो आप इक्वल फंक्शंस किते सीगे उहदे विच डेफिनेशन हैगी सी। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स लास्ट टू क्वेश्चन 6 एंड 7, दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वैसे तो आ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ने, जरूरी नहीं है कि इत्थे वो 4 वैल्यू देगा, उन्होंने एक वैल्यू दे के भी पूछ सकते हैं क्या इक्वल है कि नहीं है। तो बस आ चीज़ काट के देख लो फटाफट, मतलब तुम मूजबानी भी कर सकते हो, माइनस 1 इतने भरोगे तो वैल्यू 2 आएगी, इतने भरोगे तो भी 2 आएगी। तो इक्वल फंक्शन एक पॉइंट के लिए भी चेक हो सकता, ठीक है। अगर ज़्यादा पॉइंट दे रखे ने तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, घट होंगे तो छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, दैट मीनस 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो एक तो राइट आंसर है, बाकी सारे जो है वो रॉन्ग ऑप्शंस ने, तो उन्होंने आप फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कह दें। जिमें कि हम 6th और 7th क्वेश्चन है, वो मल्टीपल आंसर दिते हुए ने, 4 आंसरस ने, वो एक राइट चूज करना है। सो लेट्स सी व्हाट द स्टेटमेंट इज। 6th क्वेश्चन के कह रहा है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन थानू सॉल्व तो करना पेगा, ताही का आंसर आएगा अपना। तो कह रहे एक सैट है, इस सैट के थ्रू तुसी एक रिलेशन बनाना है जिदे विच आ दोनों एलीमेंट्स तो होने चाहिए ने, 1 2 और 1 3 तो होने चाहिए, 1 2 और 1 3 होन, और वो रिलेशन रिफ्लैक्सिव और सिमेट्रिक तो होवे बट ट्रांजिटिव ना होवे। तो एज ए किन्ने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं? ऑप्शंस है A 1 2 3 4, किन्ने रिलेशंस बननगे? तो आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं जिदे विच 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 3 1, ऐसे तो ही आप बना लिया एक रिलेशन। हुण आ रिलेशन जो है वो रिफ्लैक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 खुद के एलीमेंट 2 बार रिपीट हो रहे हैं ना, एक्स एलीमेंट भी वही है और वाई भी वही है, तो ये रिलेशन सैट के नाल बिलोंग कर रहे हैं। ये सैट सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 2 और 2 1 है, 1 3 और 3 1 भी है, तो सिमेट्रिक भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 1 है, 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए सी बिलोंग नहीं कर रहा, ए बी सी बट नॉट ए सी, 3 2 बिलोंग नहीं करता, तो इस करके ट्रांजिटिव नहीं है। तो एक रिलेशन अपने को बनता है जो सिमेट्रिक भी है, रिफ्लैक्सिव भी है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। हुणे ट्रांजिटिव कदों बनेगा? ਜਿਹੜੇ एलीमेंट्स ਇਹਦੇ ਨਾਲ बिलोंग नहीं कर रहे, अगर आप उन्होंने ऐड कर दिए विच, तो 3 2 और 2 3 या दोनों ही, या आ 3 2 ऐड कर दो या 2 3 ऐड कर दो या दोनों ही ऐड कर दो, देन आर बिकम्स ट्रांजिटिव। सो एक रिलेशन जो है वो सारे काम अपने जो है वो सेटिस्फाई कर देगा। सो द डिजायर्ड नंबर ऑफ रिलेशंस आर ए मीन्स ओनली 1, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ए सेट ए इज गिवन टू यू, सेम है क्वेश्चन, सेम है, बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ इक्विवेलेंस ਦੇ ਲਈ नंबर ऑफ रिलेशंस देखने ਪੈਣਗੇ। then the number of equivalence relation, number of equivalence relations कितने होंगे? those containing 1 2, ठीक है। आ वाला ऑर्डर्ड पेयर जिहड़ा हैगा 1 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ इक्विवेलेंस रिलेशंस अपने बन सकते हैं। 6th और 7th क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लगभग सेम है। सैट है अपने को एलीमेंट्स तो इन्ने सी 1 2 3, एक बार फिर मैं चक के मारूँ चंगी तरह। सैट अपने को लेगा 1 2 3, ठीक है। और पहले आते 2 ऑर्डर पेयर अपन ऐड करने सीगे,
जिथे 1 2 ऐड किया फिर सिमेट्री लिए 2 1 भी ऐड करता, 1 3 किया तो 3 1 भी ऐड करता, तो ये स्मॉलेस्ट ही बन रहा सीगा। और ये स्मॉलेस्ट इस तरह बन रहा सीगा कि ये रिफ्लैक्सिव भी हो रहा सी, सिमेट्री भी हो रहा सी, बट वो ट्रांजिटिव नहीं मंग रहा सी, इस करके ट्रांजिटिव भी नहीं हो रहा सी। तो जे वो ट्रांजिटिव मंगदा तो फिर आपां नूं आह वाले एलीमेंट्स भी उहदे विच ऐड करने पैंदे, तो उहदे तो ये वड्डा हो जाता, तो फिर दो रिलेशन बनने सी। लेकिन एक स्मॉलेस्ट रिलेशन जो ये दो चीज़ों को सैटिस्फाई कर रहा है वो तो कल्ला ही सी, इस करके ऑप्शन ए है। लेकिन हम 7वें क्वेश्चन में डिफरेंस देखो की है, सैट वही है लेकिन इतने एक ऑर्डर पेयर आप ऐड करना है और तीनों चीज़ां प्रूव करके दिखानियां ने। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों चीज़ां किहड़ियां कि वो स्मॉलेस्ट रिलेशन जो है किन्ने रिलेशन बन जाएंगे कि वो रिफ्लैक्सिव भी हो जाए, सिमेट्री भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। तो पहले तो आप स्मॉलेस्ट देखते हैं कि छोटे से छोटा रिलेशन जो 1 2 ऑर्डर पेयर नूं रखता है, कंटेन करेगा, वो रिलेशन की बनता है। तो सब तो पहले तुसीं रिफ्लैक्सिव कर लो 1 1 2 2 3 3 ओके। हुण क्योंकि वो 1 2 ऐड करने नूं कह रहे हैं तो 2 1 तो ऐड करना पवेगा सिमेट्री दे लई, ठीक है, वो आप ऐड कर लिया। हुण अगर देखा जाए तो ये फीचर जो है फिर सिमेट्री अगर होर भी बनती है क्योंकि एलीमेंट्स अपने को छुट गए ने, किहड़े एलीमेंट छुट गए ने 2 3 3 2 वो भी तो सिमेट्री बना रहे हैं, फिर 1 3 और 3 1 एलीमेंट भी लैफ्ट हो गए। तो अगर मैं इन्हों आ जिहड़े 4 ऑर्डर पेयर आए अगर इन्हों मैं इहदे R1 च ऐड करदा तो मेरे को एक वड्डा यूनीवर्सल रिलेशन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड यूनीवर्सल रिलेशन। ये इहदे सारे एलीमेंट्स नूं लैके बन रहा है। हुण इहनूं चेक करके देखो एस इहदे तो आ बनाया और ये यूनीवर्सल है। हुण ये तीनों चीज़ां ने, इहदे विच सिमेट्री भी हैगी है, रिफ्लैक्सिविटी भी हैगी है और ट्रांजिटिविटी भी हैगी है। तो अगर तीनों चीज़ां ये सैटिस्फाई कर रहा है, तीनों फीचर ये सैटिस्फाई कर रहा है तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। दिस मीन्स दैट कि स्मॉलेस्ट रिलेशन तो एक है बट तीनों फीचर नूं प्रूव करने लई अपने को R1 तो एक वड्डा रिलेशन होर बनाना पवेगा। स्मॉलेस्ट तो यही है लेकिन एक वड्डा होर बनाना पवेगा ताकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो फिर टोटल रिलेशन कितने आए 2। तो अपने को राइट ऑप्शन की है हुण 2 बने ना, 2 रिलेशंस आए। The right option is B. ठीक है, so this is your 6th and 7th question and this is the end of your exercise, miscellaneous exercise of 12th class chapter relations and functions chapter 1, right? And this is the end of your chapter relations and functions of 12th class. So next time we shall start with our differentiability, continuity and differentiability. See you.